Hi, welcome back, my all dear student. Welcome in my new video. Now we discuss about activity number 10 to make a jal tarang. Gather a few tumbler, maybe either or 10. If you can get them in different size, it is good. Otherwise, you can use balls of the same size. Arrange them in a semicircle on the floor. In increasing order of the size, fill them up with water in increasing level from one end to other. Now get a solid wooden stick and stick the balls in the series of small taps, moving from one bowl to the next. Experiment and enjoy the tickling. Try to strike in rhythms, create a tune, change the water level in the vowels and observe how the sound change. प्यारे विद्यार्थियों, यह एक्टिविटी आप करके और वीडियो शूट करके हमारे पास भेजिए। बहुत ही अच्छी है। 3 से 4, 5, 6 कटोरियां रखिए, उनमें पानी रखिए और जैसे तुम उनमें हल्के से 2 डंडी से उनमें साउंड निकालने की कोशिश करिए। आप कर सकते हैं स्टूडेंट, यू कैन डू इट। प्लीज आप कर सकते हैं, करिए। डू यू नो यू मस्ट have noticed that the guitar play tighten the string of guitar or tabla play tightening the upper membrane to get sound better sound. जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे मेम्ब्रेन्स को या फिर स्ट्रिंग्स को उतना अच्छा साउंड आएगा। साउंड 2 टाइप के होंगे, ऑडिबल और इनऑडिबल, सुनने वाले और ना सुनने योग्य। आप जानते हैं आप 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकते हैं। You know that the sound we hear is produced by the vibrating body, but can we hear all sound produced by any vibration body? Not all sound are audible to human beings. The audibility of sound depend on the number of vibration per second or the frequency. A sound with frequency less than 20 per second or 20 hertz is not audible to our ears. 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की लैंग्वेज साउंड भी हम नहीं सुन सकते। साउंड इज आर फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम को हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं और 20,000 से अधिक के साउंड को हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। Thus the audible range for human hear lie between 20 hertz and 20,000 hertz. प्यारे विद्यार्थियों, ऑडिबिलिटी and sound of other animals. Different animal have different ability to hear the produce sound. They also have voice box for producing sound like chirping of bird and croaking in frog. मेढक का टरटराना, पक्षियों का चहचहाना, ये सारे के सारे साउंड जो हैं वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस होते हैं। Hearing in dog and other animal can hear sound at the frequencies higher than 20,000 hertz. That is why people cannot hear a special dog whistles while a dog react to it. This is also why dogs are very good at keeping a guard. Elephants can hear low notes. Elephant can hear frequencies much lower than the range of human audibility. Elephant are able to hear a sound coming from 8 किलोमीटर अवे, यानी कि 8 किलोमीटर दूर तक के साउंड को ये सुन लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम विच दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इज आल्सो अमेजिंग। ये बहुत दूरी तक आपस में बात कर लेते हैं। नॉइज। डू यू लाइक टू हियर द विस्टल ऑफ बिजी रोड? आपने एक बिजी रोड देखी होगी जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। No, you do not. You prefer a solitary place in a park. आप एक शांत जगह प्लेस पार्क में बैठना पसंद करते हैं। Some sound like a musical strain or bird chirping a pleasant. आपको कुछ साउंड बहुत अच्छे लगते हैं जैसे कि म्यूजिकल या पक्षियों का चहचहाना। While some are irritating like that of the honking. अगर कोई बहुत तेज हॉर्न बजा दे तो भी आपको बहुत बुरा लगता है। An unpleasant and irregular sound is called noise. इस तरह का जो irregular sound होता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, उसे हम noise कहते हैं, शोर कहते हैं। The difference between sound and noise depend upon the listener and the circumstance. तो इसमें जो भी अंतर है वो देख लीजिए। Pleasant sound है जो regular wave pattern, जो अच्छे साउंड होते हैं, pleasant होते हैं, उनमें regular wave pattern होता है।
बट द वेव्स ऑफ नॉइज आर इरेगुलर एंड डू नॉट हैव रिपीटिंग पैटर्न, इनके पास रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता। म्यूजिकल साउंड की अगर हम बात करें तो प्लीसेंट, स्मूथ और एग्रीवेबल टू ईयर होता है, प्रोड्यूस्ड बाय पीरियडिक वाइब्रेशन विच आर रेगुलर और कंटिन्यू, यहाँ पे रेगुलर जो है वाइब्रेशन होता है। देयर आर नो सडन चेंज लाउडनेस एंड पिच, इसकी पिच और लाउडनेस में कोई एकदम से चेंज नहीं होता। साउंड लेवल इज जनरली हाई, यहाँ पे साउंड लेवल हाई होता है। एग्जाम्पल साउंड प्रोड्यूस बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड आता है। नोज कैसे होते हैं, यानी कि नोज माने शोर कैसा होता है, अनप्लीसेंट जैरिंग एंड डिसएग्रीबिल्स टू ईयर, ये बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं लगता। प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर वाइब्रेशन विच आर डी कंटिन्यूस, इसमें इरेगुलर वाइब्रेशन होते हैं। देयर आर सडन चेंज इन लाउडनेस एंड पिच, यहाँ पर पिच और लाउडनेस तुरंत बदल जाती है। साउंड लेवल इज जनरली लो, साउंड का लेवल यहाँ कम होता है। साउंड प्रोड्यूस बाय द हॉन्क ऑफ अ व्हीकल, यहाँ पर व्हीकल के हॉन्क करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। Noise pollution. Unpleasant, discordant and loud sound causes noise pollution. Noise is a recognized form of pollution but is difficult to measure because the annoyance or discomfort causes varies between individuals. Loud sound, usually above 90 decibel, causes noise pollution. Sound produced by sources such as aircraft, pneumatic drills, machines, loudspeaker, bursting cracker and horn of the vehicle causes noise pollution, यानी कि 90 डेसिबल से ज़्यादा के जो साउंड होते हैं उन्हें हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि एयरक्राफ्ट से पॉल्यूशन जो होता है, ड्रिल मशीन से और लाउड स्पीकर से, पटाखों के फटने से, इनमें सब नॉइज पॉल्यूशन होता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, क्या क्या इनके हानिकारक प्रभाव होते हैं। एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ साउंड ओवर द लॉन्ग टाइम कैन डैमेज अवर हियरिंग एबिलिटी, हम बहरे हो सकते हैं एंड बे इवन रिजल्ट इन डीफनेसेस, और इससे हम बिल्कुल अपनी सुनने की क्षमता खो सकते हैं। लिसनिंग थ्रू स्टेरियो हेडफोन एट हाई वॉल्यूम वुड आल्सो भी हार्मफुल, हम तेज ध्वनि में जो ईयरफोन से सॉन्ग सुनते हैं। साउंड हैविंग लाउडनेस अबव 120 डेसिबल बिकम पेनफुल एंड अबव 150 डेसिबल कैन बी स्ट्रेसफुल, 120 से 150 डेसिबल के से अधिक के साउंड हमें स्ट्रेस पैदा कर देते हैं बॉडी में। नॉइज में कॉसेस मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, नर्व्स टेंशन एंड इरिटेशन, हार्ट प्रॉब्लम एंड डिस्टर्ब स्लीप, यानी कि मतलब हमें नींद नहीं आती प्रॉपर और इरिटेट हो जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा शोर शराबे में रहते हैं तो। अ पर्सन एक्सपोज टू नॉइज पॉल्यूशन कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, तो ऐसे लोग जो होते हैं एक्सपोज हो जाते हैं नॉइज पॉल्यूशन से कंटिन्यू पीरियड ऑफ टाइम, गेट टेम्पररी और परमानेंट इम्पेयर ऑफ हियरिंग, ये पूरी तरह से अपना जो सुनने का वो है खो देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। स्टेप ऑफ कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन, देयर आर मैनी मेथड, बहुत सारे तरीके हैं। द सोर्स ऑफ नॉइज शुड बी muffled by the enclosing them or by using better silencer for machinery like vehicle and aircraft engine, तो हम अच्छे इंजन्स का यूज करें, अच्छे एयरक्राफ्ट में का यूज करें जो कि साइलेंस से ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस ना करें। द इंडस्ट्री मस्ट बी बिल्ड अवे फ्रॉम द रेजिडेंस एरिया, लोगों के रहने के निवास से दूर फैक्ट्रियाँ बनाई जाएँ। ट्रैफिक मस्ट बी रिड्यूज नियर रेजिडेंस एरिया, जहाँ पर रेजिडेंस एरिया है वहाँ ट्रैफिक बिल्कुल कम कर दिया जाए। स्कूल और हॉस्पिटल के पास भी ट्रैफिक बहुत कम कर दिया जाए। यूज ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, लाउड स्पीकर से का यूज बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। अननेसेसरी हॉन्किंग शुड बी अवॉइडेड, ज़्यादा हॉर्न बजाना लोगों के लिए बंद कर दिया जाए। जनरल पब्लिक शुड बी एजुकेटेड थ्रू फिल्म एंड न्यूज़पेपर अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, एजुकेटेड लोग जो हैं फिल्म एंड न्यूज़पेपर पर इसके एडवर्टाइज करें, तो वहाँ से भी नॉइज पॉल्यूशन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं।